ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Thank you so much, dear Vaishnavas, for joining in today's session. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्लोक नंबर 1.8.36। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्ति यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति here गायन्ति chant गृह्णन्ति take अभीक्षणः continuously स्मरन्ति remember नन्दन्ति take pleasure तवा your इहितं activities जनः people in general ते एवा certainly पश्यन्ति can see अचिरेण very soon तावकं your भव प्रवाह the current of rebirth उपरमं cessation padambujam lotus feet. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की है। O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and
death. Purport. The Supreme Lord Sri Krishna cannot be seen by our present conditional vision. In order to see him, one has to change his present vision by developing a different condition of life full of spontaneous love of Godhead. When Krishna was personally present on the face of the globe, not everyone could see him as the Supreme Personality of God. Materialists like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, and Shishupal were highly qualified personalities by acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of the Lord. Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see him unless we have the necessary vision. The necessary qualification is developed by the process of a devotional service only, beginning with the hearing about the Lord from the right sources. The Bhagavad Gita is one of the popular literature which are generally heard, chanted, repeated, etc. by the people in general. But in spite of such hearing, sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord face to face. The reason is that the first item, Shravana, is very important. If hearing is from right sources, it acts very quickly. Generally, people hear from unauthorized persons. Such unauthorized persons may be very learned by academic qualifications, but because they do not follow the principles of devotional service, hearing from them becomes a sheer waste of time. Sometimes the texts are interpreted fashionably to suit their own purposes. Therefore, one should select a competent and bona fide speaker and then hear from him. When the hearing process is perfect and complete, the other processes become automatically perfect in their own way. There are different transcendental activities of the Lord, and each and every one of them is competent to bestow the desired result, provided the hearing process is perfect. In the Bhagavatam, the activities of the Lord begin from his dealing with the Pandavas. There are many other pastimes of the Lord in connection with his dealing with the Asuras and others. And in the 10th canto, the sublime dealings with his conjugal associates, the gopis, as well as with his married wives at Dwarka are mentioned. Since the Lord is absolute, there is no difference in the transcendental nature of each and every dealing of the Lord. But sometimes people in an unauthorized dealing process take more interest in hearing about his dealings with the gopis. Such an inclination indicates the lusty feelings of the hearer. So a bona fide speaker of the dealings of the Lord never indulges in such hearing. One must hear about the Lord from the very beginning, as in the Srimad Bhagavatam or any other scriptures, and that will help the hearer attain perfection by progressive development. One should not therefore consider that his dealings with the Pandavas are less important than his dealings with the gopis. We must always remember that the Lord is always transcendental to all mundane attachment. In all the above mentioned dealings of the Lord, he is the hero in all circumstances. And hearing about him or about his devotees or combatants is conducive to spiritual life. It is said that the Vedas and Puranas, etc., are all made to revive our lost relationship with him. Hearing of all these scriptures is essential. तो यहाँ पर कुंती महारानी अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ा रही हैं और क्या प्रार्थना कर रही हैं? प्रेयर में एक्चुअली ग्लोरिफिकेशन कर रही है यहाँ पे कुंती महारानी। और ग्लोरिफिकेशन क्या कर रही हैं? ये कृष्ण की महिमा है और कृष्ण की भक्ति की महिमा है। तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही है, ओ कृष्णा, दोज हु कंटिन्यूअसली हियर, जो सतत आपके श्रवण में, कीर्तन में, दोज हु हियर, चैंट एंड रिपीट, और फिर श्रवण और कीर्तन करने के बाद उसको रिपीट करते कहते हैं। क्या कहते हैं? आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन, और उसको निरंतर करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं।
जो आपके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करते रहते हैं और टेक प्लेजर या फिर आनंद लेते हैं जब दूसरे ऐसा करते हैं, इन डूइंग सो सर्टेनली सी योर लोटस, वे लोग आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे ही करेंगे, विच अलोन कैन स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। और जो ऐसा करेगा उसी का, उसी तरीके से, उसी माध्यम से ये जो पुनरअपि जननम पुनरअपि भरणम है, जो होगा ये सब नाश हो जाएगा, पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण कैन नॉट बी सीन बाय अवर प्रेजेंट कंडीशनल विजन। जो भगवान है कृष्ण, श्री कृष्ण कैन नॉट बी सीन बाय अवर प्रेजेंट कंडीशनल विजन। हम लोग जो अभी कंडीशन स्टेट में हैं, हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। In order to see him, one has to change his present vision by developing a different condition of life full of spontaneous love of Godhead. अगर किसी को, हाँ, भगवान को देखना है, दर्शन करने हैं भगवान के, उसको क्या करना होगा कि अभी जो करंट सिचुएशन है, करंट कंडीशन है, जो कंडीशन है, कंडीशनड कंडीशन है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, कंडीशनड कंडीशन है, उसको उससे बियॉन्ड होने के बाद स्पॉन्टेनियस लव ऑफ गॉड है, नेचुरल अट्रैक्शन फॉर कृष्णा होना चाहिए। रागानुगा भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नेचुरल, फुल ऑफ स्पॉन्टेनियस लव ऑफ गॉड है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि करंट कंडीशन में अभी जो हमारा कृष्ण प्रेम है वो बटा हुआ है। हमारा वास्तविक, हाँ, जो प्रेम है वो कृष्ण से ही है, कृष्ण से ही प्रेम है हमारा। हम्म, जो भी भक्त होते हैं, जो भी जीव है, उनका क्या है, जैसे कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, और श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। कृष्ण भक्ति क्या है, शाश्वत है, हाँ, जीव के हृदय में। पर वो कैसे उदय होगी, कैसे उदय होगी, श्रवणादि शुद्ध चित्त, श्रवण आदि प्रक्रिया से शुद्ध होगा चित्त, अकर उदय। कृष्ण प्रेम जो है वो सभी जीवों के हृदय में स्थित है, स्थित है। कोई आ, वो मैन्युफैक्चरिंग करने की चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं से आर्टिफिशियली ला के कृष्ण प्रेम को किसी के हृदय में डालना है, नहीं, वो है श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय। यही पर यही बात कुंती महारानी कह रही हैं। तभी भगवान के दर्शन होंगे। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जो ओरिजिनल लव ऑफ गॉडहेड है, भगवान के प्रति वो जो प्रेम है, नित्य, हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबहु न है। जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है जो जीव के हृदय में है, वो क्या है, वो हमेशा से है, था और रहेगा। परंतु वो प्रेम जो है, वो जो ओरिजिनल कृष्ण प्रेम है, वो बट गया। वो बट गया, किसमें बट गया, इस संसार की बहुत सारी चीजों में बट गया, इस संसार की बहुत सारी चीजों में बट गया, इस संसार के लोगों में बढ़ गया, स्थानों में बढ़ गया, कार्यों में बढ़ गया, व्यक्तियों में बढ़ गया, वस्तुओं में बढ़ गया। हाँ, तो वो जो राग है हमारे हृदय में, राग, राग, वो जो राग है हमारे हृदय में, वो राग अनेक अनेक भौतिक वस्तुओं के लिए आ गया, अनेक अनेक भौतिक वस्तुओं के लिए आ गया। और जब वो राग पूर्ति नहीं होती तो फिर द्वेष होता है। जब वो राग पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है, द्वेष होता है। और फिर वो द्वेष कैसे दिखता है, फिर वो द्वेष ऐसे दिखता है, when Shri Krishna was personally present
On the face of the globe, not everyone could see him as the supreme personality of Godhead. भगवान वास्तव में उपस्थित हैं इस धरा पर, परंतु हर कोई भगवान को देख नहीं पा रहा है एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। क्या देख पा रहे हैं? हाँ, अपने झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन दीखी तैसी। मटेरियलिस्ट लाइक रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध एंड शिशुपाल वर highly qualified personalities by the acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of the Lord. Highly qualified personalities हैं ये सब, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, शिशुपाल, हाईली क्वालिफाइड। मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे, हाँ, तो बहुत क्वालिफाइड है। एक्चुअली पिनाकल पे हैं सारे, जो संसार के लोग कामना कर सकते हैं, तो वो सब ये लोग हैं, मटेरियलिस्टिक लोग। परंतु ये सब होने के बाद भी, हम्म, ये सब होने के बाद भी ये लोग क्या है? भगवान के प्रेजेंस को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, भगवान के प्रेजेंस को अप्रिशिएट नहीं कर सके। और क्यों नहीं कर सके भगवान के प्रेजेंस को अप्रिशिएट? क्योंकि जो उनका राग है, राग, वो मैटर पे है। हम्म, इसी व्यक्ति को कहते हैं मटेरियलिस्टिक पर्सन। उनका राग मैटर पे है। मैटर मतलब क्या हुआ? ग्रॉस मैटर भी हो सकता है और सटल मैटर भी हो सकता है। ग्रॉस मैटर क्या होता है? ग्रॉस मैटर में आप, ग्रॉस मैटर में सबसे पहले तो बेस क्वालिटीज की बात करें। पीपल आर अटैच टू देयर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अटैच हो जाते हैं। बेस क्वालिटीज जो आसुरिक ट्रेट्स हैं उससे अटैच हो जाते हैं। उसको क्रोध में आनंद आ रहा है, उसको लस्ट में आनंद आ रहा है, उसको ग्रीड में आनंद आ रहा है ना? ये सब चीजों में यानी बेसर क्वालिटीज से अटैच्ड है, एंड देन उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ये आसुरिक है, दिस इज ऑल आसुरिक, दिस इज ऑल आसुरिक टेंडेंसी। जब नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो उसको, ये आसुरिक है, उसके बाद हो सकता है आसुरिक नहीं हो तो पशु हो, उसको आहार निद्रा भय मैथुन मिल जाए, और वो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य यत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभि समान। तो ये दूसरा कौन हो गया? पशु हो गया। पहला है आसुरिक, दूसरा है पशु। उसको चाहिए कि बस आहार निद्रा भय और मैथुन मिल जाए और मैं ठीक रहूं। ये हो गया पशु। इसके ऊपर जो होता है, थोड़ा सा जब नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो वो, हाँ, मनुष्य बनता है। और मनुष्य में क्या होता है? आहार निद्रा भय मैथुन तो होना ही है, ये बेस है। और बेस के बाद क्या चाहिए? हाँ, सोशलाइजेशन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, दुनियादारी चाहिए। ये हो गया मनुष्य। हाँ, ये मनुष्य हो गया इन जनरल। फिर उस मनुष्य में जो थोड़ी सी एडवांस कॉन्शियसनेस के लोग होते हैं, थोड़े से, जो सतुगुणी होते हैं, वो स्वर्ग की तरफ ध्यान देते हैं, स्वर्ग को जाने की तरफ ध्यान देते हैं। ये हमारा धनम देही रूपम देही जन्म देही रूपवती भार्याम देही, ये सब स्वर्ग की ओर जाने की बात करते हैं, स्वर्ग जाना है। तो स्वर्ग, अब स्वर्ग की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं सारे, तो देवता बनना चाहते हैं बेसिकली। परंतु देवताओं में भी कभी कभी आसुरिक टेंडेंसीज आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं देवताओं में आसुरिक टेंडेंसीज? जब देवताओं की, देवता लोग कौन सा भोग भोगते हैं? सूक्ष्म भोग भोगते हैं। उनको चाहिए पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, धनम जन्म सुंदरी, उनको वो सुख चाहिए, उनको ऐश्वर्य चाहिए। और जब वो ऐश्वर्य नहीं मिलता है उनको, तो उनको क्रोध आ जाता है। या दूसरा कोई ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करता हुआ दिखता है, तो उनको क्रोध आ जाता है, द्वेष हो जाता है। होता है ना, देवताओं को द्वेष होता है ना, अरे इसके पास इतना ऐश्वर्य कैसे है?
द्वेष होता है। अभी जैसे इंद्र है, इंद्र के पास किसी चीज की कमी है? हाँ, कुछ भी चीज की कमी नहीं है। तीनों लोकों में जो सब सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य भोक्ता का भोगने का जो कार्य है वो इंद्र करते हैं। परंतु एक वृंदावन, और एक वृंदावन के ब्रजवासी, और एक बालक कृष्ण वो उपस्थित है, वो इंद्र से सहन नहीं हो रहा कि गिरिराज जी की पूजा आराधना कर ली इन्होंने। वो सहन नहीं हो रहा उससे। तो उसके अंदर का वो जो ईगो है वो हर्ट हो रहा है, और फिर वो अपनी आसुरी टेंडेंसी को बहा रहा है। वो तो कृष्ण है, तो उत्पाद तो करेगा ही, उत्पाद तो किया ही उसने। उत्पाद परेशान कर सकते हैं, पर ब्रजवासियों को कुछ बिगाड़ नहीं सके। परंतु ऐसा होता है, इन सब में होता है, सभी में कुछ कुछ करके ये भेज दो। जैसे हरिदास ठाकुर पाद भजन कर रहे हैं अपनी गुफा में, तो भजन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो उसको द्वेष हो रहा है। अरे इसकी इतनी प्रतिष्ठा उठ गई है, सब इसको पूज रहे हैं, तो अब क्या किया, उसको एक वैश्या को भेज दिया आधी रात के समय। और वो हरिदास ठाकुर का भजन में ध्यान है, 22 बाजार में कोड़े मारे, मार डाले, समाज से बहिष्कृत कर दिया। क्या नहीं किया श्री हरिदास ठाकुर पाद के साथ। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ऊपर आ ब्रह्मा भुवना लोक का पुनरावृत्ति अर्जुन, यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक तीनों लोगों में किसी को कृष्ण से प्रेम, स्पॉन्टेनियस लव नहीं। कोई भी नहीं चाहता कि कृष्ण स्थापित हो। सब चाहते हैं कि कृष्ण आए, अगर आए तो हमें स्थापित करके चले जाएं। हमको हमको बिठा दो, राजा बना दो। हमारा साम्राज्य ठीक नहीं चल रहा है तो कृष्ण आपको याद करेंगे हम। हमारी चीजें ठीक नहीं चल रही तो कृष्ण हम आपको याद करेंगे। इसलिए हम याद करेंगे आप। और जैसे हमारा काम हो जाए, जैसे कृष्ण ने अब 100 साल पूरे हो गए, कृष्ण की सारी चीज सेवाएं हो गई, तो देवता लोग सभी लोग गए कृष्ण के पास, और सब बोले कि हम आप आए भगवान, आपका बहुत थैंक यू। अभी आप चाहें तो जा सकते हैं, आपकी सेवा पूर्ण हुई, आप अपनी इच्छा से जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं बोल रहा देवता कि प्रभु मैं अब आपके बगैर जी नहीं पाऊंगा, मेरे को ले चलो आप, मुझे ले चलो प्रभु, मेरे से ये नहीं हो पाएगी, ये पदवी सेवा मेरे से नहीं हो पाएगी। हर कोई सुखदेव गोस्वामी जैसे थोड़ी है कि श्रीमती राधा रानी इतना बोलने के बाद भी रुके सुखदेव गोस्वामी, पर रुके कैसे, रुके रुक के भी नहीं रुके। हनुमान जी को देखिए, रुक के भी नहीं रुके। हनुमान जी संसार में है ना चिरंजीवी, रुके हैं, पर पब्लिक में दिख रहे हैं नहीं, भजन कर रहे हैं अपना। सुखदेव गोस्वामी अपना जंगल में एब्जॉर्प्शन में भजन कर रहे हैं, रह कर भी नहीं रह रहे, क्योंकि उनको मैटर से प्यार नहीं है। वो यहाँ पर सिर्फ सेवा के लिए रुके हुए हैं। जिस दिन उनकी सेवा समाप्त, उस दिन वो निकल जाएंगे यहाँ से। ऐसे हैं आचार्य, इसको इनको कहते हैं आचार्य, कि वो एक क्षण भी भगवान रहा। हनुमान जी को आप वो माला दिए विभीषण जी, ये लो माला लो, तो राम जी को भेंट की, राम जी ने सीता जी को दे दी, सीता जी ने हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी बोले ये माला का मैं क्या करूंगा, ये मोतियों से जड़ित माला का मैं क्या करूंगा, मेरे लिए कोई उपयोग की बात नहीं है माला। मुझे तो मेरे भगवान चाहिए, मेरे भगवान की सेवा चाहिए। भगवान के श्रवण कीर्तन में एब्जॉर्ब, सेवा में एब्जॉर्ब रहते हैं भक्त। और जो भक्त नहीं होते, या भी अधकचरे भक्त होते हैं या मिक्स डिवोटीज हैं, वो चाहते हैं कि भगवान की सेवा की, अरे इतनी सेवा की, अब इसका कुछ माल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए माल?
कुछ लोग बोले कि हम इतने बड़े भक्त हैं, आप इतने महान भक्त हैं, आप इतने सुंदर भक्त हैं, आप ऐसी कथा करते हैं, आप ऐसा करते हैं। ये सब ये सब बातें कोई बोले तो सही, कोई समझे तो सही, कोई कुछ करे तो सही। तो ये सब हम सुनने के लिए लालायित रहते हैं। और एक शुद्ध भक्त के पास जाएंगे, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और आदि जी के पास जाएंगे, तो वो केवल कृष्ण कथा की बात करेंगे। फालतू की ईगो, किसी की ना तो ईगो को चाटेंगे ना अपने ईगो को चटवाएंगे। उनको ये सब नहीं समझ में आता है कि हमारा ईगो चाटो, तुम्हारा ईगो चाटो। उनको एक चीज समझ में आती है, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा, कृष्ण स्थापित हो। चौथा अगर कोई समझ में आता है तो वो है आचार्य, कि आचार्य स्थापित हो जाए। हमको क्या मतलब है इन सब चीजों से। परंतु इस संसार में भांति भांति के जीव हैं, और भांति भांति की इच्छाएं हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, आसुरी प्रवृत्ति से लेकर देवताओं तक की पूरी प्रवृत्तियां भरी हुई है। तो जब तक वो हर एक कसक पूरी नहीं होती, कसक जिसको होते हैं ना, कसक डिजायर, तब तक वो पागल पागल समान डोलता रहता है, पागल तड़पता रहता है। तब तक वो तड़पता ही रहता है। उसके अंदर कसक है, कसक। ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, सब लाओ। ब्लैक होल है, ब्लैक होल, ब्लैक होल समझते हैं, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। और इतना सब कुछ होने के बाद भी देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें, मटेरियलिस्ट लाइक, यही मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी है। जो मटेरियलिस्ट कौन है, वो इस संसार में रहकर सुखी रहना हो चाहता है, ये है मटेरियलिस्टिक। और भौतिक तत्व से सुखी रहना चाहता है। और ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन है, जो ज्ञान में सुखी रहता है, वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है और इस संसार से परे जाना चाहता है। जो योग में सुखी रहता है और इस संसार से परे जाना चाहता है, वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है। और जो भक्ति में सेवा के सुख में सुखी रहता है और इस संसार से परे जाना चाहता है, ये है ट्रांसेंडेंटलिस्ट। तो मटेरियलिस्ट को क्या है कि संसार में सुखी रहना है, उसको सर्वश्रेष्ठ बनना है, संसार में ईश्वर बनना है। तो और कोई ईश्वर आ जाएगा या उसके पास ऐसा ईश्वर का ऐश्वर्य होगा, ईश्वर जैसा ऐश्वर्य किसी और के पास होगा, तो उसको द्वेष होगा, उसको द्वेष होगा। और वो पागल हो जाएगा और वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग। तो ये देखिए ना, मटेरियलिस्ट लाइक रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध एंड शिशुपाल पर हाईली क्वालिफाइड, सब कुछ है। हाँ, पर भगवान के ऐश्वर्य को देख के, इवन इंद्र को देखिए ना, सब कुछ है ना, देवता है, इंद्र को देखिए सब कुछ है। ब्रह्मा जी को देखिए, विस्मित है। ये सब ऊपर के लेवल पे हमारे लिए शिक्षा के लिए है, हम उनमें दोष नहीं देखते हैं। पर शिक्षा के हिसाब से देखिए, सब कुछ है ना। परंतु उनको क्या लग रहा है, मेरी बुद्धि से परे ये व्यक्ति नहीं हो सकता, ये व्यक्ति मेरी बुद्धि से परे नहीं हो सकता, मैं इतना बुद्धिमान हूं। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि का बना हुआ है। तीन तत्व है ना, सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। तो पूरा तत्व, अहंकार, अहंकार बहुत, वो अहंकार में बुद्धि प्रिडोमिनेटली है। अहंकार है तभी मैं हूं। और प्योरली बुद्धि का बना हुआ, इंटेलिजेंस का बना हुआ है उनका शरीर। मन संकल्प विकल्प मनोधर्म करता है ना, ये ब्रह्मा जी के इसमें नहीं। तो मेरी बुद्धि से बियॉन्ड ये व्यक्ति नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी को ऐसे लग रहा है। आचार्य हैं, पर लीला के हिसाब से अगर आप देखें, वो पोजीशन ही ऐसी है कि ये व्यक्ति मेरी बुद्धि से बियॉन्ड नहीं हो सकता। अगर ईश्वर है तो ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि में ये फिट है। ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता, ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बुद्धि में ये फिट है। अब ईश्वर ऐसा कर रहा है, झूठा खा रहा है, तो ये ईश्वर नहीं हो सकता। अभी इसकी ईश्वरता, ये जो ढोंग है, इसको नीचे करता हूं मैं, इसको नीचे गिराता हूँ, अभी अभी बताता हूँ इसको। तो फिर क्या हुआ ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। इंद्र को लग रहा है ये छोटा सा बालक, हाँ, मिट्टी के ढेले की पूजा कर रहा है, मेरी पूजा नहीं कर रहा। ये बुद्धि से ये सब अपने अपने, वो कैसे चल रहा है, इंद्र कैसे चल रहे हैं, रजोगुण से चल रहा है। ईश्वर तो मैं हूँ, भोक्ता तो मैं हूँ। वो गिरिराज जी को भोक्ता बना दिया इसने।
इसने गिरिराज जी को भोक्ता बना दिया कि गिरिराज जी मालिक हैं, गिरिराज जी स्वामी हैं, गिरिराज जी भगवान हैं। तो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, गिरिराज जी मेरे से श्रेष्ठ है। तो लोग आ गए, फिर इंद्र आ गए अपने इसमें। इस पूरे तत्व में आप देखिए, लॉर्ड शिवा को देखिए। लॉर्ड शिवा आए, और लॉर्ड शिवा कैसे बोले, अनुगत्य हो गए यशोदा मैया का। और फिर जब अनुगत्य हुए और यशोदा मैया नहीं मानी, तो बेचारे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये है प्रेम। लॉर्ड शिवा का प्रेम देखिए। इसको कहते हैं शुद्ध भक्त, या ये शुद्ध भक्ति की क्रिया में लगे हुए हैं। भगवान के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। हम्म, परंतु फिर भी संसार में रहते हैं तो कुछ कुछ तो ऊपर नीचे हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, क्योंकि जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वो उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। बेचारे दयालु हैं, लॉर्ड शिवा दयालु हैं, तो कभी नरकासुर प्रभावित कर देता है। सेवा कर रहा है, अब बेचारे लॉर्ड शिवा अपनी समाधि में आंखें खोलते हैं तो देखते हैं, अरे वाह तपस्या कर रहा है, बोलो। तो दया आ जाती है उनको, अरे ठीक है चलो ले लो। फिर वो उत्पात करता है, फिर वो लॉर्ड शिवा को उनके ईश्वर के अगेंस्ट कर देता है। भगवान से भी लड़ना पड़ता है बेचारे लॉर्ड शिवा को। ऐसे तो अनुयायी हैं संसार में, ऐसे तो अनुयायी हैं। हम्म, तो साधु तो वो तो साधुत्व है, लेकिन उनका उनका स्वभाव देखो लॉर्ड शिवा का, जब ब्रज में है कितना सुंदर स्वभाव है। हनुमान जी को देखिए, 24 घंटे अपने भगवान राम की सेवा में लिप्त है। 24 घंटे या भजन में लिप्त है। फालतू की कोई बात का समय नहीं है उनके पास। हनुमान जी हैं, लॉर्ड शिवा हैं, गिरिराज जी को देखिए। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श से उनको आनंद होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गिरिराज जी स्वयं कृष्ण है पर फिर भी सेवक के रूप में, ऐसा कभी भी नहीं होता कि गिरिराज जी चाहेंगे कि मैं खुद स्थापित हो जाऊं। वो तो कृष्ण है जो गिरिराज जी को स्थापित कर रहे हैं। गिरिराज जी कभी नहीं बोले कि मैं स्थापित कर रहा हूँ। गिरिराज जी सेवा करना चाहते हैं। स्वयं कृष्ण ही है, परंतु सर्वेंट के रूप में वो खुश रहते हैं। श्रीमती राधा रानी को देखिए, नंद बाबा यशोदा मैया को देखिए। तीनों लोगों में एक भी ऐसा प्रसंग नहीं आता जब नंद बाबा यशोदा मैया को ये भान है, हाँ, कि मैं तो बहुत बड़ा नंदराय हूँ, मैं तो बहुत बड़ी यशोदा मैया हूँ। ये भान ही नहीं है उनको। हाँ, ये इनको समझ में ही नहीं आता कि मैं इतना बड़ा हूँ, इतना महान हूँ। उनके 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 कंसेप्शन में मैं नहीं है, उनके कंसेप्शन में कृष्ण है। उनके कंसेप्शन में कृष्ण है, कृष्ण की प्रसन्नता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सर्वस्व न्यौछावर है। और ऐसे ही ब्रजवासी हैं। ये होता है प्रेम। और जब ऐसा प्रेम होगा, तब यत्र तत्र सर्वत्र केवल कृष्ण दिखाई देंगे। कृष्ण के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। और जहां कृष्ण नहीं होंगे वहां वो व्यक्ति पागल हो जाएंगे, हो गए पागल। जैसे ही कृष्ण का दिखना बंद हो गया, कृष्ण का सुनना बंद हो गया, कृष्ण की सेवा बंद हो गई, तो ब्रजवासी सब पागल हो गए, पागल। फिर जब उद्धव जी आए तो फिर से कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन के माध्यम से कृष्ण को प्रकट किया। ब्रजवासियों को समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। लेकिन फिर उद्धव जी पागल होके चले गए। कि ये क्या देख लिया मैंने, ये क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये वो चल क्या रहा है यहाँ पे। इनको न तो अपनी मुक्ति की कोई अभिलाषा है, न इनको किसी चीज का, हाँ, न इनको ब्रह्म ज्ञान से मतलब है, न इनको
अपनी मुक्ति से मतलब है, न इनको अपने सुख से मतलब है। यानी ये समस्त परिधियों से परे, और इनको जो भक्ति के रूप में सिद्धि होती है, भक्ति की सिद्धि है, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, जो ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सायुज्य तो भक्त नहीं बोलता, जो वैकुंठवासी भी जो चाहते हैं वो वाली मुक्ति भी नहीं चाहिए। उनको बस चाहिए कि कृष्ण हमारे पास आ जाएं, बस। और इसके विपरीत कि कंस भी यही चाह रहा है कि कृष्ण एक बार यहाँ आ जाए बस, मथुरा में। नंद बाबा क्या सोच रहे हैं कि कृष्ण हमारे पास आ जाए, मथुरा से यहाँ आ जाए बस, तो क्या करेंगे? हम्म, वो कृष्ण वहां दुखी रहता है, मथुरा में, द्वारका में दुखी रहता है, उसको खूब लाड़ करेंगे, उसको खूब प्रेम करेंगे। ये नंद बाबा यशोदा मैया ये ब्रजवासियों का भाव है। श्रीमती राधा रानी, तुम यहाँ सुखी नहीं हो, कृष्ण का भी यही भाव है, कृष्ण के हृदय को जानते हैं ब्रजवासी। एक बार यहाँ आ जाए। और कंस क्या सोच रहा है? कंस सोच रहा है एक बार कृष्ण यहाँ आ जाए बस, फिर मैं क्या करूंगा? खूब लाड़ लड़ाऊंगा? नहीं। खूब ये करूंगा? नहीं। खूब वो करूंगा? नहीं। क्या करूंगा? मार दूंगा। यही शिशुपाल है, यही जरासंध है, हाँ यही कंस है, यही हिरण्यकशिपु है। विष्णु एक बार आ जाए मार दूंगा। यही रावण है, राम को मार दूंगा, उसकी पत्नी को छीन लूंगा। दिस इज आसुरिक, कि जब हम भगवान को और भगवान के शुद्ध भक्तों को मार कर स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं, दिस इज आसुरिक। दिस इज आसुरिक। दिस इज आसुरिक। Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see him unless we have the necessary vision. Necessary vision क्या कब आएगा? कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा करने के बाद आएगा। श्रवणम कीर्तनम, हम्म, स्मरणम पाद सेवनम। सेवा करेंगे जब, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। अभी जिनका श्रवण हम कर रहे हैं, जिनका हम कीर्तन कर रहे हैं, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जिनका हम स्मरण कर रहे हैं, हाँ, तो वो क्या होगा? उससे हम वैसे बन जाएंगे, कंडीशन हमारी ऐसी हो जाएगी, हमारा नेसेसरी विजन वैसा हो जाएगा। दिस नेसेसरी क्वालिफिकेशन इज डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस ओनली। अभी भी हो रहा है, पर दूसरे का श्रवण कीर्तन स्मरण, बिगिनिंग विद द हियरिंग अबाउट द लॉर्ड फ्रॉम द राइट सोर्सेस। सही सोर्स से हमें, हाँ, क्या करना होगा? श्रवणम कीर्तनम और सेवनम करना होगा, भगवान की सेवा करनी। The Bhagavad Gita is one of the particular literatures which are generally heard, chanted, repeated, etc. by the people in general. But in spite of such hearing, etc., sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord face to face. The reason is that the first item, Shravan, is very important. हम्म, इतना सब कुछ करने के बाद भी श्रवण करता है, कीर्तन करता है, सेवा करता है, पर फिर भी उसको भगवान के दर्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो राइट सोर्सेस से श्रवण नहीं करता। जैसे हम शिल प्रभुपाद से श्रवण करते हैं तो एकदम भगवान स्थापित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिल प्रभुपाद भगवान को स्थापित करने आए हैं, आचार्यों को स्थापित करने आए। जो व्यक्ति स्वयं को स्थापित करना चाहता है वो कैसे भगवान के दर्शन कराएगा हम? वो कितनी भी कथा करेगा, कितना भी कुछ भी करेगा, तो भगवान के दर्शन नहीं होने वाले। किसके दर्शन होने वाले? उसके दर्शन होने वाले। उसके दर्शन होंगे हमको। हर थोड़ी देर बाद में हम, एक भक्त जो है, उसका पर्पस संसार की जीवात्माओं को स्वयं का दीवाना बनाने का कभी नहीं रहता है कि मैं हीरो बन जाऊं और मेरी ये फैन फॉलोइंग हो। ऐसा एक भक्त कभी नहीं चाहता। वो नेचुरली हो जाता है। जैसे माधवेंद्र पुरी पाद की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और माधवेंद्र पुरी पाद भाग रहे हैं प्रतिष्ठा से इधर उधर, इधर उधर, इधर। इसलिए हरिदास ठाकुर पाद की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और उनको मार रहे हैं लोग, मार रहे हैं। मार रहे हैं। प्रतिष्ठा बढ़ रही है तो मारो इसको, ये कर रहे हैं।
और 22 बाजार में मार रहे हैं, यहाँ मार रहे हैं, वहां मार रहे हैं। तो ये इस संसार में नियम है एक्चुअली। द रीजन इज दैट क्योंकि श्रवण और कीर्तन जो है वो राइट सोर्सेस से नहीं हो रहा। हाँ, इसीलिए जैसे हम शिल प्रभुपाद को सुनते हैं, शिल प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, इस संसार के ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मनोधर्म करते हैं। और जब हम शिल प्रभुपाद की बात को सुनते हैं, तो शिल प्रभुपाद की बात को सुनकर तुरंत कृष्ण स्थापित हो जाते हैं। Such unauthorized persons may be very learned by academic qualifications, बहुत स्कॉलरली हो सकते हैं, but because they do not follow the principles of devotional service, hearing from the so hearing from them becomes a sheer waste of time, sheer waste हो जाता है समय का। Sometimes the texts are interpreted fashionably, कई बार वो अपने मन के तरीके से वो टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं। Therefore, one should select a competent and a bona fide speaker and then hear from them. तो एक राइट व्यक्ति से श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए। When the hearing process is perfect and complete, the other processes become automatically perfect in their own. और जब श्रवण सही होगा तो बाकी सारे प्रोसेस सही हो जाएंगे। श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिल प्रभुपाद का there are different transcendental activities of the Lord, and each and every one of them is competent to bestow the desired result. अलग अलग हैं नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, अलग अलग है। और हर एक कंपिटेंट है कि हमको भगवान की शुद्ध भक्ति और भगवान के दर्शन और भगवत प्राप्ति करा देगी। पर उससे पहले श्रवण का प्रोसेस यानी संग सही होना चाहिए। सोचिए अगर हमने ऐसे व्यक्ति का संग किया जो बोले कि भगवान की भक्ति करके आप भगवान को मार सकते हो, तो हमारे जीवन में जीवन भर का लक्ष्य क्या रहेगा? क्या रहेगा लक्ष्य? कि भगवान को मारना है। हाँ, श्रवण राइट नहीं हुआ ना, भक्ति करके मार सकते हैं, और ये मायावादी लोग करते हैं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेट गोल क्या? भगवान को मारना। दैट्स द अल्टीमेट गोल। ये जो तीन वाद हैं, एक है मायावाद, और दूसरा है भोगवाद, और तीसरा है निराकारवाद। ये तीनों ने पूरे संसार को भ्रष्ट कर दिया। मायावाद मतलब मैं ईश्वर, भोगवाद मतलब मैं भोक्ता से ईश्वर हूं, और निराकारवाद में मतलब ईश्वर कोई है ही, इसका कोई आकार ही नहीं। ये तीनों जो है ये मेंटालिटी है लोगों की, ये मानसिकता है। ईश्वर कौन है? रोशनी है। आप रोशनी क्यों नहीं हो? ये सब द्वेषी हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम, ये सब कृष्ण द्वेषी हैं, सब कृष्ण द्वेषी। There are different transcendental activities of the Lord, and each and every one of them is competent to bestow, provided the hearing process is perfect. In the Bhagavatam, the activities of the Lord begin from his dealings with the Pandavas. तो भागवतम में जो भगवान की जो श्रवण हो रहा है वो पांडवों से शुरू हो रहा है। There are many other pastimes of the Lord in connection with his dealings with asuras and others. पांडवों के साथ, असुरों के साथ। And then in the 10th canto, the sublime dealings of with his conjugal associate, the gopis, is there, as well as with his married wives at Dwarka are mentioned. Since the Lord is absolute, there is no difference in the transcendental nature and each and every dealing of the Lord. But sometimes people in an unauthorized process take more interest in hearing about his dealings with the gopis. Such an inclination indicates the lusty feelings of the hearer. So a bona fide speaker of the dealing of the Lord never indulges in such hearings. भगवान की अलग अलग लोगों के साथ डीलिंग्स हैं संसार में, आप देखेंगे। तो असुरों के साथ भगवान ने डील किया, मनुष्यों के साथ भगवान ने डील किया। संसार के जो मनुष्य थे, हम जो
जो श्रद्धावान थे उनके साथ भगवान ने डील किया। भगवान ने देवताओं के साथ भी डील किया। भगवान ने पशु रूप में जो थे महाराज मृग, पशुओं के साथ डील किया, उद्धार किया भगवान ने पशुओं का भी, असुरों का, पशुओं का, मनुष्यों का, देवताओं के साथ भी डील किया। ये सारी डीलिंग्स है भगवान की। और फिर इंटीमेटली डील किया तीन भक्तों के साथ। चार ये हो गए, असुर, फिर पशु, फिर मनुष्य, फिर देवता। ये चार कैटेगरी के संसार के लोगों से डील किया। और हाँ, और इस उधर अगर हम देखें तो और इधर ट्रांसेंडेंटलिस्ट के साथ भी डील किया भगवान ने। जैसे मुचुकुंद ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, भगवान ने डील किया। अब वो भगवत प्राप्ति करना चाहते थे तो उनके साथ भी डील किया भगवान ने। और फिर जो इंटीमेटली डील किया, अपनत्व मान के डील किया, वो पांडवों के साथ डील किया। और भगवान ने ऐसा जो है मथुरा वासियों के साथ डील किया या द्वारका वासियों के साथ डील किया, एक ही बात। और तीसरा जो उन्होंने डील किया ब्रजवासियों के साथ थी। तो उधर असुरों के साथ डील किया, मनुष्यों के साथ, पशुओं के साथ डील किया, मनुष्यों के साथ डील किया, देवताओं के साथ डील किया, और ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, या तो भगवत प्राप्ति या ब्रह्म ज्योति या जो भी प्राप्त करना चाहते थे, उन सबके साथ डील किया। पांचों के साथ डील किया वहां पर। और यहाँ पर इन तीन सेट्स इंटीमेटली डील किया इनके साथ भगवान। परंतु ये सभी जो लीलाएं हैं, जो भगवान किसी के साथ भी डील कर रहे हैं, ये सभी ग्लोरियस हैं। और भक्त बहुत रसास्वादन करता है जब भी वो भगवान की लीला कथा को सुनता है, श्रवण करता है, तो बहुत रसास्वादन करता है भक्त, बहुत रसास्वादन करता है भक्त। परंतु जो कुछ मूर्ख लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान की इनके साथ डीलिंग उतनी अच्छी नहीं लगती, उनके साथ डीलिंग उतनी अच्छी नहीं लगती, उनके साथ डीलिंग उतनी अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं है। और वो सीधे गोपियों के साथ जो रास लीला है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे लोग दिखा रहे हैं कि इनकी इनकी जो टेंडेंसी है वो कहाँ है, लस्ट में है, इंटीमेटली लस्ट लस्ट की तरफ ये लोग फोकस्ड। जबकि भक्त को ग्रेजुअल प्रोसेस से ग्रो करना चाहिए। यू शुड हियर फ्रॉम भागवतम, you should hear about everything, and then and the 10th canto you should hear about Krishna's dealing with Brajvasis first, and then with the gopis. As in the Bhagavatam or in any other scriptures, one must hear about the Lord from the very beginning, as in the Bhagavatam or in any other scriptures, and that will help the hearer attain the perfection. Perfection milega by progressive development. One should not therefore consider that his dealings with the Pandavas are less important than his dealings with the gopis. ये श्री प्रभुपाद बताया। We must always remember that the Lord is always transcendental to all mundane attachment. भगवान हमेशा दिव्य है mundane attachments. In all the above mentioned dealings of the Lord, he is the hero in all circumstances, and hearing about him or his devotees or combatants is conducive to spiritual life. हर परिस्थिति में हीरो कौन है, कृष्ण है। परंतु इस संसार में हीरो कौन बनना चाहते हैं, हम स्वयं, या जो हमको अच्छा लगता है हम उसको हीरो बनाना चाहते हैं। हाँ, अभी कोई बता रहा था कि महान अवतार नरसिम्हा मूवी आई, तो जो पहले जो इधर उधर जो नहीं टॉय एनिमेटेड हीरोज थे, उस सबको ध्वस्त करते हुए जो रियल हीरो हैं नरसिंह देव, वो रियल हीरो के रूप में स्थापित हो गए, जो है ही। बाकी सब उनकी विकृत अंश 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 इनसिग्निफिकेंट अंश के विकृति है, विकृति है। वो अंश भी जब राइटली रिफ्लेक्ट होगा तो वो भगवान के दास के रूप में रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ और दास के रूप में रिफ्लेक्ट होगा तो उसका संबंध दिखेगा भगवान के साथ। अगर भगवान के साथ उसका संबंध नहीं दिख रहा है और वो स्वयं स्थापित होना चाह रहा है, सो दैट्स अ विकृत विकृत एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ, विकृत एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेल्फ। फिर उसके कार्य भी वैसे होते हैं, वो स्वयं को स्थापित करने के लिए भगवान को भी काट सकता है। इट इज सेड दैट द वेदास एंड पुराणास एटसेट्रा आर ऑल मेड टू रिवाइव अवर लॉस्ट रिलेशनशिप विथ हिम।
हियरिंग ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स इज एसेंशियल, और इसीलिए इस समस्त शास्त्रों का श्रवणम कीर्तनम यह आवश्यक है, और इसी से हमारी शुद्ध भक्ति पुनः जागृत हो जाएगी भगवान। थैंक यू सो मच डियर वैष्णवास फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।